فرما دیا۔ بآواز بلند صلوات والا شاہی تسی کہا جانا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صل علی محمد وآل محمد اللہم کن لولیک الحجۃ ابن الحسن علیہ الصلاۃ والسلام صلواتک علیہ وعلی آبائہ فی ہذہ الساعۃ وفی کل ساعۃ من ساعت اللیل والنہار ولیجا وحافظا وقائدا وناصرا ودلیلا وعینا حق میرا پردے میں ہے تو ظاہر اسے کر دے اے رب جہاں پنجتن پاک کا صدقہ اس قوم کے دلوں کو غم شبیر سے بھر دے اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرج قائم آل محمد درود بھیجیں آل محمد سلطانہ القدیم من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم انا نحن نزلنا الذکر وانا له لحافظون ثم الصلاة والسلام على رسوله الكریم واہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین منتخبین المنتجبین المغمومین المظلومین ولعنت اللہ علی اعدائهم وغاصب حقوقهم ومنکر فضائلهم وولایتهم ومصائبهم اجمعین من یوم عداوتهم الى یوم الدین قائم آل محمد کی جلد آمد کے لیے درود بھیجیں آل محمد پہ دعا ہے کہ آل محمد کا کریم اللہ آل محمد کے صدقے میں بانیان مجلس کا یہ صف عذابی چھایا اپنی عزت اور عظمت والی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے جتنے بھی سادات غیر سادات شیعہ سنی دوست احباب دور و نزدیک سے چل کے آئے ہیں مالک ان کی عبادت اپنی عزت والی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے اور میرا پردے والا وارث آپ کی اور میری اس حاضری کو اجر مودت میں شمار فرما کر شرف قبولیت عطا فرمائے جی اجازت ہے میں سادہ سادہ سی گفتگو کر لوں جناب جی ضلع بہاولپور کی تحصیل یزمان میں کسی مولوی سے مناظرہ ہار کے یا کسی مولوی کی بات میں آ کے میں شیعہ نہیں ہوا الحمدللہ یہ 3 تفسیریں میرے سامنے موجود ہیں 3 تفسیروں پہ میرا ہاتھ ہے میری ذاتی ریسرچ ہے یہ کتابیں میں بیچنے کے لیے نہیں آپ کو دلیل کے طور پہ دکھانے لایا ہوں جو باتیں کرنی ہیں دکھانی ہیں جی مجھے قبلہ نے موضوع بھی دیا ہے جو آیت مجیدہ میں نے تلاوت کی ہے کوشش کروں گا کہ اسی آیت مجیدہ کو موضوع سے ملا لوں میرے محترم سامعین اکرام اللہ رب العزت اپنی لارائب اور بے عیب کتاب قرآن مجید میں ارشاد فرماتے ہیں پارہ نمبر 14 سورۃ الحجر آیت نمبر 9 اللہ رب العزت فرماتے ہیں انا نحن نزلنا الذکر وانا له لحافظون بے شک ہم ہی ہیں جو اس ذکر کو نازل کرنے والے ہیں اور ہم ہی ہیں جو اس ذکر کی حفاظت کرنے والے ہیں سب سے پہلے تو اس بات کو سمجھنے کے لیے یہ دیکھا جائے آیت مجیدہ کو سمجھا جائے آیت فرماتی ہے ہم نازل کرنے والے ہیں ایک ان پڑھ بھی بندہ جانتا ہے جہاں کوئی کہے نا ہم وہ ایک نہیں ہوتا جہاں کوئی کہے وہ ایک نہیں ہوتا
जमा हम यानी एक से ज्यादा। पहली बात तो यह है कि पूरी मजलिस में कोई भी बंदा मेरे साथ ये समझ के ना बोले ना जाने कौन कौन है जो अल्लाह होगा, जो इस हम में आएगा। अल्लाह कल भी एक था, अल्लाह आज भी एक है। जो कल भी उसकी जात या सिफात में किसी को शरीक करता था वो भी मुशरिक था, जो आज करता है वो भी मुशरिक है, जो कल करेगा वो भी मुशरिक होगा। अल्लाह ला रैब है, अल्लाह रब्बे ऐब है, अल्लाह बेमिसाल है, अल्लाह बेमिसाल है। अल्लाह रब्बुल इज्जत की कायनात में मज़हब इस्लाम में वाहिद मिल्लत जाफरिया ऐसी फिका है जिसके अकीदे के मुताबिक अल्लाह को देखा नहीं जा सकता, अल्लाह नजर नहीं आ सकता, अल्लाह समातों से टकरा नहीं सकता, अल्लाह सोचों में समा नहीं सकता, अल्लाह आंखों में समा नहीं सकता, क्योंकि वो बेमिसाल है। जो आंखों में समा जाए उसकी मिसाल होती है। मेरे पास मौजूद है मेरे भाइयों की अहले सुन्नत की मोतबर किताब मिशकात शरीफ, जिल्द नंबर 3 सफ़ा नंबर 199। मैंने अर्ज किया कि वाहिद मिल्लत जाफरिया अल्लाह की कायनात में ऐसी है जिनके अकीदे में अल्लाह को देखा नहीं जा सकता, जिनके अकीदे में अल्लाह की मिसाल नहीं है। वाहिद इसलिए कहा है कि ये मेरे भाइयों की किताब है मिशकात शरीफ, जिल्द नंबर 3, वलीउद्दीन मोहम्मद बिन अब्दुल्लाह तबरेज़ी ने लिखी है। हकीमुल उम्मत मुफ्ती अहमद यार खान नईमी ने तर्जुमा किया है। सफ़ा नंबर 199 पे लिखा है कि क़यामत वाले दिन जब जन्नती जन्नत में चले जाएंगे, दोज़खी दोज़ख में चले जाएंगे, अल्लाह से दोज़ख कहेगी या अल्लाह मेरा पेट नहीं भरा, अल्लाह अपना पाँव दोज़ख में रखेगा। हम शियों का ये अकीदा नहीं, क्योंकि पाँव होना मिसाल है, अल्लाह बेमिसाल है, अल्लाह की मिसाल नहीं है, अल्लाह बेमिसाल है। उस बेमिसाल अल्लाह ने बेमिसाल बना के कुरान को भेजा है। जी पारा नंबर 1 सूरतुल बकरा आयत नंबर 30 अल्लाह फरमाता है व इन कुंतुम फी रैबिम मिम्मा नज़्ज़लना अला अब्दिना फ़अतू बिसूरतिम मिन मिस्लिही वदऊ शुहदाअकुम मिन दूनिल्लाहि इन कुंतुम सादिकीन। ए काफिरो, ए मुशरिको, अगर तुम्हें शक है कि ये कुरान अल्लाह का कलाम नहीं तो क्या करो, फ़अतू बिसूरतिम मिन मिस्लिही वदऊ शुहदाअकुम मिन दूनिल्लाह, अल्लाह के अलावा तुम्हारे जितने मददगार हैं सबको बुला लो, तुम्हारे जितने गवाही देने वाले हैं सबको बुला लो, तुम्हारे जितने शहादत देने वाले हैं सबको बुला लो, सबको बुला के करो क्या, फ़अतू बिसूरतिम मिन मिस्लिही, इस जैसी एक सूरत बना लो। कुरान बेमिसाल है ना। अल्लाह फरमाता है इस जैसी मिसाल बना लो, इस जैसी एक सूरत बना लो। फ़इन लम तफ़अलू वलन तफ़अलू, तुम लाना भी चाहो ना ला सकोगे। इस कुरान की मिसाल तुम्हें कहीं से भी ना मिलेगी। क्यों? नहनु नज़्ज़लना ज़िक्रा, हम नाज़िल करने वाले हैं, हम हिफाजत करने वाले हैं, हमने इस जैसा बनाया ही नहीं, तुम्हें मिलेगा कहां से? आपको पता है 5 का 10 का 500 का 50 का 500 का 5000 का भी नोट नकली बन चुका है। और बाज बनाने वाले तो इतने माहिर हैं वो कायदे आज़म का कोट भी असली कर देते हैं। लेकिन कुरान मेरे नबी का वो मौजज़ा है जिसका 2 नंबर नहीं बन सकता है। हर चीज का 2 नंबर बन सकता है, कुरान का 2 नंबर नहीं बन सकता। यही लरैब और बेऐब कुरान। अल्लाह ने फरमाया हम जिक्र के नाजिल करने वाले हैं, हम जिक्र की हिफाजत करने वाले हैं। ये अल्लाह का कुरान मेरे हाथ में है, मेरे पास वक्त होता मैं आपको बताता अल्लाह ने कुरान में जिक्र किस किस को कहा है, किस किस मकाम पे कहा है। लेकिन इसी आयत मजीदा के तहत के हम नाजिल करने वाले हैं जिक्र के, हम जिक्र के नाजिल करने वाले हैं और हम हिफाजत करने वाले हैं। इसी आयत मजीदा को सामने रखकर मैं जिस जिक्र पे गुफ्तगू करना चाहता हूँ, पारा नंबर 28 सूरतुत तलाक आयत नंबर 10 और 11 अल्लाह फरमाता है कद अंज़लल्लाहु इलैकुम ज़िक्रा रसूलन यतलू अलैकुम, हमने तुम्हारी तरफ एक जिक्र नाज़िल किया है, वो जिक्र हमारा रसूल है। पीछे वालों आप नाराज बैठे हो? हमने
پاس موجود ہے میرے بھائیوں کے اہل سنت کے مشہور علامہ طاہر القادری کا لکھا ہوا ترجمہ اہل سنت، دیوبندیوں کے شاہ رفیع الدین محدث دہلوی اور اہل حدیث کے نواب وحید الزمان، یہ دونوں ترجمے اور تفسیری سے ایک جلد میں اکٹھی آئی گئی ہیں۔ 3 تفسیریں اہل سنت، دیوبند اور اہل حدیث میرے پاس موجود ہیں۔ انہوں نے لکھا ہے کہ اللہ نے ایک ذکر نازل کیا، وہ ذکر رسول ہے، رسول یتلو علیکم آیات اللہ، وہ ذکر ہمارا رسول ہے جو تم پر ہماری آیتوں کی تلاوت کرتا ہے۔ ان کے قرآن بھی ذکر ہے، رسول بھی ذکر ہے۔ قرآن کا محافظ بھی خدا ہے، نبی کا محافظ بھی خدا ہے۔ قرآن حفاظت میں ہے تو اللہ رب العزت کی وجہ سے، نبی پاک حفاظت میں ہے تو اللہ رب العزت کی وجہ سے۔ قرآن بھی ذکر ہے، رسول بھی ذکر ہے، لیکن فرق ہے، فرق سمجھا دوں ایک جملے میں، جس نے سمجھنا ہے وہ میری طرف دیکھے۔ قرآن بھی ذکر ہے، رسول بھی ذکر ہے۔ اللہ نے ذکر کی حفاظت کا ذمہ لیا ہے۔ قرآن حفاظت میں ہے تو اللہ کی وجہ سے، نبی پاک حفاظت میں ہے تو اللہ کی وجہ سے۔ قرآن بھی ذکر ہے، رسول بھی ذکر ہے، لیکن فرق یہ ہے کہ اس کے ذکر کرنے سے وہ ذکر نہیں بنا، اس کے ذکر کرنے سے وہ ذکر نہیں بنا، اس کے ذکر کرنے سے یہ ذکر بنا ہے۔ قرآن کے پھیلنے سے محمد نہیں بنے، مصطفیٰ کے پھیلنے سے قرآن بنا ہے۔ یہ ساری زندگی بولتا رہتا، کبھی بھی مصطفیٰ کو مصطفیٰ نہ بنا سکتا۔ میرا مصطفیٰ وہ ہے، سو جائے تو قرآن بن جاتا ہے، جاگے تو قرآن بن جاتا ہے۔ ایک جملے میں ختم کر لوں، کینکریاں پھینکے تو بھی قرآن بن جاتا ہے۔ قرآن بھی نازل ہوا، قد انزل اللہ علیکم ذکرا، رسول بھی نازل ہوا۔ قرآن کا محافظ بھی خدا، نبی کا محافظ بھی خدا۔ اچھا، قرآن کا پارا پاک ہے، قرآن کا پارا پاک ہے، قرآن کی آیت پاک ہے، قرآن کی سورت پاک ہے، قرآن کا رکوع پاک ہے، قرآن کی زبر زیر پاک ہے نا، یعنی مختصر کروں، قرآن کا جز پاک ہے، قرآن کا جز پاک ہے، قرآن کا جز پاک ہے۔ اللہ کے بندے، قرآن بھی ذکر ہے، نبی پاک بھی ذکر ہے۔ قرآن کی حفاظت کا ذمہ بھی اللہ نے لیا ہے، نبی کی حفاظت کا ذمہ بھی اللہ نے لیا ہے۔ قرآن کا بھی جز پاک ہے، مان جا، نبی کا بھی جز پاک ہے۔ اے موسری اعظم، ہم تیرا دم بھرتے رہیں گے، اللہ کی قسم، ماتم تیرا ہم کرتے رہیں گے۔ لاکھ پردے میں شفا ہے شکل جدید، لعنت تیری تصویر پر ہم کرتے رہیں گے۔ اچھا، کسی کو پتا ہے یہ قرآن کب سے ہے؟ کوئی پتہ نہیں، لیکن یہ بات کنفرم ہے کہ جب سے ہے تب سے پاک ہے۔ قرآن جب سے ہے تب سے پاک ہے۔ صدقے جاؤں قرآن کی عظمت کے، یعنی قرآن کا ماضی پاک ہے، قرآن کا ماضی پاک ہے، قرآن کا ماضی پاک ہے۔ بندے ہمارے پیچھے پڑ گئے بے وقوف کہ تم شیعہ اسے نہیں مانتے، اسے نہیں مانتے، اسے نہیں مانتے۔ ہم قرآن کے برابر کسی اور کو اس لیے نہیں مانتے کہ اس کا ماضی پاک ہے، اور کسی کتاب کا کیا پتہ۔ قرآن کا ماضی پاک ہے، بندے یوں ہی ہمارے پیچھے پڑ گئے کہ شیعہ اسے نہیں مانتے، شیعہ اسے نہیں مانتے، شیعہ اسے نہیں مانتے۔ یہ اللہ کا قرآن میرے ہاتھ میں ہے، ہم شیعہ مانتے صرف اسے ہیں جس کا ماضی پاک ہے۔ جس کا ماضی پاک ہو ہم اسے کیوں مانتے ہیں؟ میرے ہاتھ میں موجود اللہ کی لاریب اور بے عیب کتاب قرآن مجید، پارہ نمبر 11 سورہ یونس۔ اللہ فرماتا ہے فَقَدْ لَبِثْتُ فِيكُمْ عُمُرًا مِّن قَبْلِهِ أَفَلَا تَعْقِلُونَ۔ میرا نبی جو تیری نبوت میں شک کرتے ہیں، جو تجھے نبی نہیں مانتے، انہیں معجزے نہ بتا، انہیں
انہیں یہ نہ بتا میں نے چاند کے 2 ٹکڑے کر دیے، انہیں یہ نہ بتا کہ میری انگلیوں سے پانی کے چشمے نکلے، انہیں یہ نہ بتا کہ میں نے کینکریوں سے کلمہ پڑھا لیا، انہیں معجزے نہ بتا۔ پھر حبیب نے پوچھا مالک کروں کیا؟ فرمایا میرا حبیب جو تیری نبوت میں شک کرتے ہیں ان سے پوچھ، فَقَدْ لَبِثْتُ فِيكُمْ عُمُرًا مِّن قَبْلِهِ، اس اعلان نبوت سے پہلے میں نے تم میں ایک زندگی نہیں گزاری۔ اعلان نبوت سے پہلے ایک زندگی نہیں گزاری۔ نمونہ، اسوۃ حسنہ، سیمپل، ٹائٹل، نقشہ، ایک زندگی گزاری ہے۔ فَقَدْ لَبِثْتُ فِيكُمْ عُمُرًا مِّن قَبْلِهِ أَفَلَا تَعْقِلُونَ، میں نے تم میں جب ایک زندگی گزاری ہے پھر تم عقل کیوں نہیں کرتے؟ یعنی کہ اللہ نے یہ فلسفہ دیا ہے ہمیں قرآن میں، جسے منوانا ہو اس کا ماضی دکھایا جاتا ہے، جسے منوانا ہو اس کا ماضی دکھایا جاتا ہے۔ ہم نے تجھے علی منوانا ہے، ہم تجھے علی کا ماضی دکھاتے ہیں، جو تو نے منوانا ہے تو اس کا ماضی دکھا دے۔ قرآن کا بھی جز جز پاک ہے، نبی کا بھی جز جز پاک ہے۔ قرآن جہاں سے چلا وہاں سے پاک ہے۔ اللہ کے بندے پھر مان جا، جہاں سے نبی کی نسل چلی تھی، جہاں سے نبی کی نسل چلی وہاں سے پاک۔ جس جس باپ کے ذریعے رسول ہمیں ملے وہ باپ پاک، جس ماں کے ذریعے نبی ہم تک پہنچے وہ ماں پاک۔ کسی کو اگر یوں یقین نہ آئے آیت پڑھ دیتا ہوں، پارہ نمبر 19 سورۃ الشعراء آیت نمبر 219۔ اللہ فرماتا ہے وَتَقَلُّبَكَ فِي السَّاجِدِينَ، حبیب ہم تجھے سجدہ کرنے والوں میں منتقل کرتے رہے، یعنی جس کی پشت میں تیرا نور رہا وہ سارے میرے ساجد تھے، وہ سارے میرے عابد تھے، ان میں مشرک کوئی نہیں تھا۔ یعنی حضور کے والد گرامی پاک، ان کے والد گرامی پاک، ان کے والد گرامی پاک، ان کے والد گرامی پاک، حضرت آدم کا بیٹا پاک، پھر ان کا بیٹا پاک، پھر ان کا بیٹا پاک۔ نام کسی کو آتے ہیں یا نہیں آتے؟ یہ سارا خاندان پاک ہے نا۔ حضور کے والد گرامی پاک، پھر ان کے والد گرامی پاک، پھر ان کے والد گرامی پاک۔ مولوی کے سر پہ قرآن رکھ کے پوچھو اگر یہ سارا سلسلہ پاک ہے، یہ درمیان میں ابراہیم کا باپ کافر کیسے ہو گیا؟ ابراہیم کا باپ کافر کیسے ہو گیا؟ نبی کا جو سلسلہ نسب پاک ہے، اللہ نے فرمایا ہم نازل کرنے والے ہیں، ہم حفاظت کرنے والے ہیں۔ اگر نبی کا باپ کافر ہو، نبی کے نسب میں فرق آتا ہے، توہین خداوندی ہوتی ہے۔ نبی کے نسب میں فرق آ جائے خدا کی توہین ہوتی ہے۔ اچھا ایک بات اور آپ سے پوچھ لوں، یہ قرآن لوح محفوظ میں رہا، لوح محفوظ کا آپریشن نہیں ہوا، کتاب مکنون میں آیا، کتاب مکنون کا آپریشن نہیں ہوا، جو فرشتہ اسے لے کے آیا اس فرشتے کا آپریشن نہیں ہوا، یہ جس دل پہ اترا ہے اس میں نعوذ باللہ ایسا کیا نقص تھا کہ آپریشن کی ضرورت پڑ گئی۔ جی پارہ نمبر 11 سورہ یونس آیت نمبر 11، اللہ فرماتا ہے یہ قرآن قد جاءتکم موعظۃ من ربکم وشفاء لما فی الصدور، یہ قرآن سینوں کے اندر والی بیماریوں کو شفا دیتا ہے۔ یہ قرآن سینوں کی، لوگ کہتے ہیں شیعہ نو قرآن نہیں آتا، اب میں آلو بیچدا پیا جی، میرے وانگو بھی قرآن چو مجلس پڑھ کے وکھاؤ نا، ہر گل قرآن چو۔ اللہ فرماتا قد جاءتکم موعظۃ من ربکم وشفاء لما فی الصدور، قرآن سینوں کے اندر والی بیماریوں کو شفا دیتا ہے، قرآن سینے کے اندر والی بیماریوں کو شفا دیتا ہے۔ اللہ کے بندے جس سینے میں اس کی آیتیں آ جائیں، جب اس میں بیماری نہیں رہتی تو جس سینے سے یہ آیتیں نکلی ہیں اس میں بیماری کیسے آ سکتی ہے؟ یہ سارا سلسلہ پاک، درمیان میں ابراہیم کا باپ کافر کیسے ہو گیا؟ یہ لوگوں کو
दुश्मनी क्या है इब्राहिम से? क्यों कहा इब्राहिम का बाप काफिर था? अच्छा मैं हुक्का नहीं ना पींदा ते जेड़ा बंदा नहीं पींदा उस आखना चंगा है, ते जेड़ा पींदा ओदा किसे पासे वास्ते लगना भी मैं जो नहीं पींदा। हुण ले तेरा दादा पींदा सी, ए रौला सी। इब्राहिम पे बस नहीं चला, लोगों ने बाप पे हमला कर दिया। लो जी इसके बाप ने कलमा पढ़ा नहीं था, हमें पढ़ाता फिरता है। कोई इब्राहिम का बाप काफिर नहीं था। हाँ कुरान में लफ्ज़ अब मौजूद है, ये अल्लाह का कुरान मेरे हाथ में मौजूद है। कुरान का गलत तर्जुमा नहीं करना चाहिए, कुरान से गलत फायदा नहीं उठाना चाहिए, कुरान का गलत इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। अरबी ऐसी जुबान है जिसमें लफ्ज़ अब बाप के लिए भी इस्तेमाल होता है, चाचा के लिए भी इस्तेमाल होता है। जैसे लफ्ज़ जद दादा के लिए भी आता है, नाना के लिए भी आता है। ये मेरे पास मौजूद है मेरे भाइयों की अहले सुन्नत की मोतबर किताब क़ससुल अंबिया, सफ़ा नंबर 75। दूसरी किताब मेरे भाइयों की अहले सुन्नत की मोतबर किताब मआरिजुन नबुव्वत, मुल्ला मोइनुद्दीन काशफी वाइज़ी हरवी ने लिखी है। पीरज़ादा इकबाल अहमद फारूकी ने इसका तर्जुमा किया है और इसका ये जो किताब का आखिरी सफ़ा है, इन दोनों किताबों में लिखा हुआ हजरत इब्राहिम के बाप का नाम तारुख था। अजर बाप नहीं था, अजर चाचा था, तारुख थे, हजरत तारुख अलैहिस्सलाम। क्योंकि ये नबी का नस्ब है, ये नस्ब पाक है, ये नस्ब पाक है, ये नस्ब पाक है। मैं वकालत कर रहा हूँ हजरत इब्राहिम के वालिद की, हजरत अली के वालिद की नहीं। अच्छा आपको पता है सड़कों के किनारों पे नलके लगे होते हैं, मैं वेखे ने एडे एडे नलके होंगे ना, और किसी को पता होवे ना होवे, दोधियां नूं पता होंदा है जी दुध च पानी पाउण या ना पाउण पता जरूर होंदा। चक्के जो मिट्टी भी तो गड़नी पै जाती है ना जनाब, लाजमी तो नहीं भी बंदा पानी पावे, और किसी को पता होवे या ना होवे, दोधियां नूं नलके दा जरूर पता होंदा है। मौलवी के अंदर की बेईमानी मैं जानता हूँ, आप नहीं जानते। उसने क्यों कहा कि इब्राहिम का बाप काफिर था? पता वजह क्या है? इब्राहिम ने लोगों के बुत तोड़ दिए थे, लोगों के जनाब ने बुत तोड़े थे। बुत उस दिन तोड़े थे जब पूरे शहर का मुंह गाट वाला की तरफ था। आपके ही काट चक्का तो मुझे नहीं पता, गाट वाला मैंने इसलिए कहा कि पूरे खुरड़ियां वाला का मुंह अतवार वाले दिन उस तरफ होता है। सारे मेले पे नबी ने सोचा इनका काम तमाम करो, तोड़ दिए सारे। ये कुरान मेरे पास मौजूद है, कुरान मेरे और आपके दरमियान जामन है। बात सच्ची करनी है, बात खरी करनी है, कोई पार्टी बाजी नहीं करनी। ईमान से बताओ जो छुप के बुत तोड़े लोग तो उसके बाप को नहीं छोड़ते, जो नबी के कंधों पे चढ़ के तोड़े उसके बाप को छोड़ेंगे? चलो दरूद पढ़े आले मोहम्मद पे। जी मुझे इशारा मिल गया है कि मुख्तसर करने, क्योंकि पढ़ने वाले अच्छा काबा देखा है आपने टीवी पे? काबा जिसने देखा है बताएं। सबने देखा है, आपने देखा काबा के साथ एक छोटी सी दीवार है जिसे कहते हैं हतीम काबा। हतीम काबा के साथ एक जाली लगी है सुनहरी रंग की, उसके अंदर हजरत इब्राहिम के कदमों के निशान लगे हुए हैं उस पत्थर पे, उसे कहते हैं मकाम इब्राहिम। ये मेरे पास मौजूद है अल्लाह की लारैब और बेऐब किताब कुरान मजीद, पारा नंबर 1 सूरतुल बकरा आयत नंबर 124, 25, 26, 27 और 28। अल्लाह फरमाता वत्तखिज़ू मिन मकाम इब्राहिम मुसल्ला, मेरा नबी मकाम इब्राहिम को नमाज पढ़ने की जगह बना ले, उसे मुसल्ला बना ले, वहां पे नमाज पढ़ा कर। अब अल्लाह तो कह रहा है कि वहां पे नमाज पढ़ा कर, उसे नमाज पढ़ने की जगह बना ले। सऊदी अरब वालों ने वहां पे एक बंदा खड़ा किया है, हाजी जाता है हज के लिए, उसे देखने के लिए जाता है। हाजी कहता है, वो बंदा कहता है कुछ नहीं जा कि देखे कोई ना भी, अल्लाह के बंदे या कुरान में जिक्र ना हो, अल्लाह ने आयतुल्लाह न कहा हो। पारा नंबर 4 पहला रुकू इब्तिदाई आयत आयत नंबर 54 अल्लाह फरमाता है इन्ना अव्वल बैतिन वुदिअ लिन्नास लल्लज़ी बिबक्कता मुबारकन व हुदल लिल आलमीन, मैंने लोगों के लिए जो पहला घर बनवाया है वो मक्का में है, बड़ा
मुबारक है, लोगों को हिदायत भी देता है। आगे अल्लाह फरमाता फीह आयातुम बय्यिनातुम मकाम इब्राहिम, उसमें हमारी आयात भी हैं, हमारी निशानियां भी हैं। उन्हीं निशानियों में एक निशानी मकाम इब्राहिम है। पारा नंबर 14 सूरतुन नहल आयत नंबर 105 अल्लाह फरमाता इन्नल्लज़ीना ला युमिनूना बि आयातिल्लाहि ला यहदीहुमुल्लाह, वो लोग जो हमारी निशानियों पे ईमान नहीं रखते, हम उन्हें हिदायत देना ही नहीं चाहते। वो लोग जो हमारी जो लोग हमारी आयतों पे ईमान नहीं रखते, हम उन्हें हिदायत देना ही नहीं चाहते। लोग ही सानू कहंदे ने कुरान चो घोड़ा कढ़ के विखाओ। ओए अल्लाह दे बंदिया कुरान भी वेख ते घोड़ा भी वेख, ए चो निकलदा ही घोड़ा आ जो निकले पहले ओ ते मानन, आ नबी दे कदम ते पहले मानन। अल्लाह के बंदे अगर कुरान में जिक्र ना हो फिर तू ना देखने दे। कुरान में जिक्र है, अल्लाह ने आयतुल्लाह ना कहा हो ना देखने दे। कुरान में जिक्र अल्लाह ने आयतुल्लाह कहा है, फिर है तो नबी के कदमों के निशान, चूम लेने दे, तेरा क्या जाता है, देख लेने दे। लेकिन मौलवी के अंदर बेईमानी छुपी हुई है। वो समझता है अगर लोग इब्राहिम के कदमों के निशानों को देखने लग पड़े, अगर लोग इब्राहिम नबी के कदमों के निशानों को देखने लग पड़े, आहिस्ता आहिस्ता सलाम करने लग पड़ेंगे। अगर लोग इब्राहिम नबी के कदमों के निशानों को देखने लग पड़े, आहिस्ता आहिस्ता सलाम करने लग पड़ेंगे। वो समझता है अगर लोग इब्राहिम के कदमों के निशानों को सलाम करने लग पड़े, फिर उन कदमों को तो चूमने लग पड़ेंगे जो मोहम्मद के कंधों पे आए थे। लोग उन कदमों को तो चूमने लग पड़ेंगे। ये जितने भी बुत परस्त है ना, मुला खीर ते हलवे दा झगड़ा है, मुला होर ते रौला कोई नहीं। कदीर मैदान दा सामने है, विच कंध दा ओला कोई नहीं, पर सारे अखर इको जा ओ विच पारा होला कोई नहीं। ओ मैनू कसम खुदा दी तिन्ना चो मन कुंतुम नबी का नस्ब पाक था। लोग जी मैंने थोड़ा जा पढ़ लेने दो, टाइम थोड़ा है। मैं चाहता हूँ कि मैं पैगाम पहुँचा दूँ, मैं रिसालत का कोई पैगाम आप तक पहुँचा दूँ, मजलूमीन का मासूमीन का कोई पैगाम आप तक पहुँच जाए। जी मेरी कोशिश होती है हर मजलिस में कि बतूल के बेटों का हाथ मेरे गिरबान पे ना आए, हक अदा करूँ, क्योंकि मैं लंगर खाता हूँ इमाम हुसैन का, मैं खाता पीता और ओढ़ता हूँ बतूल के बेटों के, इसलिए कोशिश करता हूँ उनका हक अदा करूँ जहाँ तक मेरी वसत, जहाँ तक मेरी ताकत है मैं हक अदा करूँ, ताकि क़यामत वाले दिन मासूम नाराज ना हो। तो हमारे मिंबर पे गया तो उन्हें हमारा पैगाम नहीं पहुँचाया। दुनिया वाले नाराज हो जाए खैर है, फातिमा के बेटे नाराज ना हो, दुनिया वालों की खैर है। नहीं देखने देता वो इब्राहिम के कदमों के निशान, समझता है कि लोग चूमने लगेंगे उन कदमों को जो नबी के कंधों पे आ गए थे, इसलिए इब्राहिम के कदमों के निशान छुपा लिए। बात बड़ी आहिस्ता से कहूंगा अगर आपने समझ ली। ये जितने भी बुत शिकन है ना, बुत तोड़ने वाले, ये जितने भी बुत शिकन है ना, हर बुत परस्त उसके बाप का दुश्मन है। हर बुत परस्त बुत शिकन के बाप का दुश्मन है। इसलिए लोगों ने कह दिया इब्राहिम का बाप काफिर था ना। और अगर ऐसी रिवायत मिल भी जाए, आपके और मेरे छठे वारिस वो फरमाते हैं अगर तुम तक कोई बात पहुंचे सलवात भेजो। आका फरमाते हैं अगर हमसे मंसूब, हसन भाई बड़ी देर के बाद मिलो पैगाम ले जाना। आका फरमाते हैं अगर हमसे मंसूब कोई बात पहुंचे, अगर हमसे कोई मनसूब बात तुम तक पहुंचे, हमसे पूछो हमारी है या नहीं। शायर ने कहा मौला अगर हम आपको ना पाए, ये नहीं कहा कि आप ना हो, हम आपको ना पाए, फरमाया फिर कुरान से मिलाओ, कुरान से मिल जाए तो हमारी है। फरमाया जो कुरान से टकराए वो हमारी नहीं। नहीं जी, जब तक पीछे वालों को समझ ना आई, जो भी कुरान से टकराए, जो भी कुरान से टकराए वो हमारी नहीं। चाहे चुप
टकराए या बोलने वाले से टकराए? जो भी कुरान से टकराए वो हमारी नहीं। अगर ऐसी रिवायत मिल भी जाए दीवार पे मारो। नबी का सिलसिला नसब पाक है, फिर नबी दुनिया पे आए, माँ पाक थी, बाप पाक थे, बाप हजरत अब्दुल्ला अलैहिस्सलाम, माँ हजरत आमिना सलामुल्लाह अलैहा। लोग कहते हैं शिया बड़े गुस्ताख होते हैं, तू हमें सुने तो तुझे पता चले। नबी की माँ सलामुल्लाह अलैहा, नबी के वालिद अलैहिस्सलाम थे। अल्लाह ने वादा फरमाया ना मैंने हिफाजत करनी है। मौजू से मैं अभी तक नहीं निकला, मैंने हिफाजत करनी है जिक्र की। इस हिफाजत के सिस्टम को बरकरार रखने के लिए अल्लाह ने नबी पाक की वालदा का इंतकाल तब किया जब दूध पीने की मुद्दत खत्म हो गई। 6 साल ज़ाहिरी कुरान हथ च फड़ के गल करनी बड़ी औखी होती है। अल्लाह ने नबी की वालदा का इंतकाल तब किया जब हुजूर की दूध पीने की मुद्दत खत्म हो गई। क्यों? पारा नंबर 2 सूरतुल बकरा आयत नंबर 172 अल्लाह फरमाता है कुलू मिन तय्यबाति मा रज़क़नाकुम, खाओ वो जो तैयब हो, खाओ वो जो तैयब हो। अब नबी ने इस आयत के मुताबिक चीज वो खानी है जो तैयब हो, जो तैयब हो। अल्लाह के बंदे या बीबी हलीमा के दूध को तैयब साबित कर, या मान जा के माँ का पिया है। माँ जो मौजूद है, माँ भी सलामुल्लाह अलैहा, तकरीफ करने की जरूरत क्या है? अगर आपने बीबी हलीमा की शान बयान करनी है, मैं तरीका बताता हूँ, मजलिस में आ, गाजी का सदका तेरी मुश्किलें हल ना हो जाए कहना जी मैं 1 मिनट से टेंशन मुका देना है। दूध पीने वाला जड़ा रौला है, दूध पिलाना ही सिर्फ इज्जत है, सिर्फ दूध पिलाना शान है। शिया सुन्नी बोल के बताओ, अगर सिर्फ दूध पिलाने में शान है, फिजा ने किस किस को दूध पिलाया था? फिजा ने किस किस को दूध पिलाया है? किसी को नहीं पिलाया। नबी पाक ने चीज वो खानी है जो तैयब भी हो, जो ताहिर भी हो, तैयब भी हो, ताहिर भी हो। ये मेरे पास मौजूद है मेरे भाइयों की अहले सुन्नत की मोतबर किताब मआरिजुन नबुव्वत, जिल्द नंबर 2 सफ़ा नंबर 113। दूसरी किताब है क़ससुल अंबिया, इसकी एक ही जिल्द है, इसका सफ़ा नंबर 464। तीसरी किताब है मेरे भाइयों की मदारिजुन नबुव्वत, जिल्द नंबर 2 सफ़ा नंबर 35। चौथी किताब है मेरे भाइयों की हादिये आलम, इसका सफ़ा नंबर 46। इन सारी किताबों में ये रिवायत मौजूद है जी दाइयाँ सर सब्ज़ और शादाब इलाकों में बच्चे लेके जाती थी। दाइयाँ सर सब्ज़ और शादाब इलाकों में बच्चे लेके जाती। अगर अगली बात समझनी है ये जुमला ज़हन में रखना, दाइयाँ सर सब्ज़ और शादाब इलाकों में बच्चे लेके जाती थी। जिसने देखना मजलिस के बाद भी हवाला देख लेना, मजलिस के बाद जिसे टाइम ना मिले, जब जी चाहे खोड़ने वाला आ जाना, मुझसे राब्ता करके किताब दिखाऊंगा। जिन दाइयाँ सर सब्ज़ और शादाब इलाकों में बच्चे ले जाती थी पालने के लिए, आओ आपको मैं दिखाऊं बीबी हलीमा का इलाका कितना सर सब्ज़ और शादाब था। ये मेरे पास मौजूद है क़ससुल अंबिया और मआरिजुन नबुव्वत। मैं आपको क़ससुल अंबिया की इबारत सुना देता हूँ। बीबी कहती है कि हमारे इलाके में कहत पड़ा हुआ था, 7 दिन खाने के लिए कुछ नहीं मिलता था। एक ऊँटनी थी जो चल नहीं सकती थी। तुसी सुनिया नहीं, मैं आप भी माड़ी हाँ ते मेरी कुल्ली भी माड़ी है। ना तो तुहानू सारियां आउंदियां, उंज चुप करके बह जांदे हो, तुहानू सानों बालियां आउंदियां जी। ऊँटनी थी, चल नहीं सकती थी। गधा था जो इतना कमजोर था, जब चलने की कोशिश करता तो टांगे आपस में टकराती थी, चल नहीं सकता था। शहर में खजूर का दरख्त था, चंद बकरियां रखी हुई थी, खजूर के ऊपर कुछ नहीं था, बकरियों के नीचे कुछ नहीं था। ये सर सब्ज़ और शादाब इलाका था। ऊँटनी चल नहीं सकती, गधा चल नहीं सकता, खजूर के ऊपर कुछ नहीं, बकरियां
बकरियों के नीचे कुछ नहीं। फिर जब बीबी हलीमा गई तेरे और मेरे नबी को लेकर वापस चली, ऊँटनी पर बैठी, ऊँटनी तेज चलने लगी। साथ वाली दाइयों ने पूछा हलीमा सवारी बदली? का नहीं, सवार बदल लिया जी। ऊँटनी चलने लग पड़ी, गधा भी चलने लग पड़ा, ऊँटनी दूध देने लग पड़ी। बकरियों ने इतना दूध दिया कि बर्तन खत्म हो गए, खजूर पे फल लग गया। पहले तो कुरान पे हाथ रख के ये बता, ये नबी हलीमा को पालता था या हलीमा नबी को पालती थी? कौन किसे पालता था? कौन किसे पालता था जी? बात रही है कि दूध पिलाना। आइए कुरान से फैसला ले लेते हैं। कुरान से बढ़ के तो कोई चीज नहीं। पारा नंबर 20 सूरतुल कसस, पारा नंबर 20 सूरतुल कसस, आयत नंबर 12, अकीदा भी 12 वाला। वहर्रमना वहर्रमना अलैहिल मराज़िया मिन क़ब्लु, हमने मूसा पर गायों का दूध पहले ही हराम कर दिया था। ये जो मूसा पे हराम है नबी पे हलाल था। कुरान कह रहा है जी, किताब तो नहीं कुरान है, तो कुरान में शक नहीं हो सकता। जो कुरान में शक करे वो काफिर। अल्लाह फरमाते हैं वहर्रमना अलैहिल मराज़िया, शक को घर जाके देख लेना। पारा नंबर 20 सूरह कसस आयत नंबर 12, वहर्रमना अलैहिल मराज़िया मिन क़ब्लु, हमने मूसा पर गायों का दूध पहले ही हराम कर दिया था। इस सूरतुल कसस की आयत नंबर 6, 7 और 8 पढ़ के देखें, आपको इस कुरान में से मौलवियों के बड़े बड़े बोल मिलेंगे। मौलवी कहता है जी सिर्फ वही अल्लाह पे, अल्लाह के रसूल पे आती है। पारा नंबर 20 सूरतुल कसस इब्तिदाई आयत में अल्लाह फरमा रहा है वअौहीना इला उम्मे मूसा, हमने मूसा की माँ की तरफ वही की। वअौहीना इला उम्मे मूसा, अल्लाह ने सादा अरबी इस्तेमाल किया ताकि कोई बंदा ये ना कहा जी मुझे तर्जुमा नहीं आता था। वअौहीना इला उम्मे मूसा, हमने वही की मूसा की माँ की तरफ। क्या कि मूसा को संदूक में बांध कर दरिया में बहा दे। वकालत लिउख्तिही कुस्सीही, और उसकी बहन से कहा तू थोड़ा फासला रख के संदूक के साथ चलती जा। अब संदूक में मूसा बंद थे, संदूक में मूसा बंद थे, संदूक बहता जाता था। मूसा की बहन हजरत कुलसूम वो साथ साथ चलती जाती थी। वो बहता बहता संदूक, फिरौन ने उस दरिया में से एक रास्ता बनवा के पानी का लाया था अपने महल में। उसके महल में उसने एक तालाब बनाया था जिसमें वो नहाता था। अब बीबी आसिया और ये फिरौन बैठे हुए थे, संदूक इसके महल में पहुंच गया। हुण मैं तो किताब तो पढ़ के सुनाना है। सफा नंबर 242 कहता फिरौन अमीस सानी ने अपनी बीवी आसिया की तरफ मुखातब होकर कहा, ये क्या चीज है जो पानी पर बहती है? ये कहकर दोनों अपने तख्ते शाही से उठे और उसके करीब जाकर देखा कि एक संदूकचा है। फिरौन अमीस सानी ने चाहा कि उस संदूकचा को अपने हाथ से उठा ले, लेकिन वो संदूकचा उसके हाथ में ना आया, क्योंकि फिरौन काफिर मुशरक पलीत था। अबारत मैंने पढ़ दी, फैसला आप करना। ये मैं कच्चे पैरी मौलवी हुंदा, मैंने मौलवियां जीण ही नहीं सी देना। फिरौन क्यों नहीं हाथ लगा सका उस संदूकचे को? काफिर था, उसमें नबी था। नबी कौन सा था? मूसा। मूसा तेरे और मेरे नबी का उम्मती नबी। जिस संदूक में मूसा हो उसे कोई काफिर हाथ नहीं लगा सकता। तेरा और मेरा नबी 40 साल काफिर के घर में पलता रहा था। आगे इसके बाद हजरत आसिया ने अपने हाथ दराज किए और उन्होंने वो संदूकचा अपने हाथों से उठा लिया। क्यों? फिरौन अमीस सानी के सामने लाकर रखा। फिर फिरौन अमीस सानी ने उसके खोलने की हर चंद कोशिश की, लेकिन वो संदूकचा फिरौन से न खुला। क्यों? काफिर था ना, मजबूरन थक कर बैठ गया। फिर हजरत आसिया, इस पे दाद लेनी है मैंने इस बात पे, फिर हजरत आसिया जो के मोमिना थी,
जो कि मोमिना थी, उसने संदूकचा खोल लिया, खोल गया क्योंकि मोमिना थी, काफिर खोल नहीं सका, मोमिना ने खोल लिया। अल्लाह दी कसम है भी रोज अंदर वड़ के कहती सी, या अल्लाह इस कंजर तो मेरी जान छुड़ा। अल्लाह फरमांदा सी एडी सौरी ते ना पाया, तेरा जिक्र मैं मरियम ते आसिया तेरा जिक्र मैं मरियम ते हाजरा नाल करांगा, इंज सौरी ना पाओ। कहंदी सी या अल्लाह इस कंजर तो मेरी जान छुड़ा। अल्लाह फरमाया सौरी ना पाया, तेनू एडे कुत्ते घर च रखे ही तां इत्थे मेरे नबी ने आउणा है। मैं नबूवत दा तहफ्फुज भी ते करना है ना। अब 3 दिन तक दाइयां आती रही दूध पिलाने, मूसा नहीं पीता था क्योंकि अल्लाह ने हराम कर दिया, अल्लाह ने नक्शा खींचा है। अल्लाह कहता पी ही नहीं सकता था, क्यों? नहनु नज़्ज़लना ज़िक्रा व इन्ना लहू लहाफ़िज़ून, हम नाज़िल करने वाले हैं, हम हिफाजत करने वाले हैं। दाइयां अंदर से बाहर निकलती थी, बाहर हजरत मूसा की बहन खड़ी थी, हजरत कुलसूम, वो पूछती थी दूध पिया? ठीक तो है ना, बहन थी ना, भाई की मोहब्बत मजबूर करती थी, ठीक तो कहती थी ठीक है, पर दूध नहीं पीता। 3 दिन के बाद हजरत कुलसूम ने फरमाया एक दाई मैं भी बताऊं तुम्हें? उन्होंने कहा बीबी पहले सुती से 3 दिन हो गए ना, बादशाह परेशान, मलका परेशान, छेती कर। हजरत कुलसूम दौड़ के गई और मैं अम्मा बीबी ने फरमाया मुफ्ती दाई बन के आई हूँ, उजरत लूंगी, उजरत तय करो। उजरत तय ना की हो मैं मुजरिम, बताया हो मैं मूसा की माँ हूँ मैं मुजरिम, बहन ने बताया हो मैं बहन हूँ मैं मुजरिम, उजरत तय की। फरमाया मैं खज्जल खवार होने वाली दाई नहीं। आसिया ने पूछा करें क्या? फरमाया मेरे घर भेज दो। आसिया ने कहा सीधे दूध ही पियाना है ना। सूरतुल कसस इब्तिदाई आयत, अल्लाह फरमाता है फरददनाहु इला उम्मी मूसा, हमने मूसा को उसकी माँ की तरफ लौटा दिया था। मूसा वापस माँ के पास, मैं खज्जल खवार होने वाली दाई नहीं, वहीं भेज दो। उनका हमने तो बच्चा पिलवाना है, दूध ही पिलाना है, वहां ले जा। लोगों ने झूठा शेर डाला हुआ है, मूसा फिरौन की गोद में पला। मूसा बिल्कुल फिरौन की गोद में नहीं पला। 3 दिन हजरत मूसा रहे थे फिरौन के घर में। उन 3 दिनों में उसने एक दिन उठाया था, जनाब ने दाढ़ी में हाथ डाल के थप्पड़ मारा था। 3 दिनों के बाद मूसा वापस माँ के पास, माँ की गोद में पला। आखिरी बात 2 जुमले मशाइब के। अच्छा माँ ने बताया मैं माँ हूँ, बहन ने बताया मैं बहन हूँ। मौलवी तेरे मुंह से जिड्डी जुबान है ना, कट के आख नबी दी माँ झूठी सी, नबी दी भैन झूठी सी। नहीं, कहाँ जाएगा तो बचेगा जी, कहा है ना मैं दाई हूँ, बज़ाहिर झूठ नहीं। बहन ने नहीं बताया मैं बहन, माँ ने नहीं बताया मैं माँ, झूठ कहोगे काफिर हो जाएगा वो बंदा जो कहेगा नबी की माँ झूठी थी, जो कहेगा नबी की बहन झूठी थी। नहीं झूठी थी। कहाँ जाओगे तो बचोगे? सिर्फ सादक के दरवाजे पे आओगे तो बचोगे। अल्लाह की कायनात में वाहिद मिल्लत जाफरी ऐसी है, वाहिद सादिक मौला ऐसे हैं, इनके दरवाजे पे आओगे तो बचोगे। तेरे और मेरे सादिक मौला से किसी ने पूछा मौला, उन्होंने झूठ बोला तो फरमाया खबरदार, इसे मेरी मिल्लत में तकिया कहते हैं, यही मेरी मिल्लत में तकिया है। यानी कि तहफ्फुज़ मासूम की खातिर अपने तारुफ पे पर्दा डाल लेना, इसे कहते हैं तकिया। ये जो लोग कहते हैं शिया मज़हब में झूठ जायज़ है, ये है झूठ कि मासूम के तहफ़्फ़ुज़ के लिए या कुरान के या नबूवत के तहफ़्फ़ुज़ के लिए अपना तारुफ छुपा लेना, अपना आप छुपा लेना, इसे कहते हैं जी तकिया। नबी की माँ है, नबी की बहन है, हज़रत मूसा की, छुपा लिया, नहीं बताया मैं बहन, नहीं बताया मैं माँ। सादिक मौला फरमाते हैं इसे मेरी मिल्लत में तकिया कहते हैं। अल्लाह के बंदे, आसिया अपना ईमान छुपा के रखती थी, मूसा की माँ ने अपना ईमान छुपा के रखा, मूसा की बहन ने अपना ईमान छुपा के रखा। किस लिए? तहफ़्फ़ुज़ नबूवत के लिए। अगर इतने बंदे नबी की हिफाजत के लिए खुद को छुपा के रखें तो वो मुसलमान हैं, और अगर अबू तालिब मोहम्मद की हिफाजत के लिए खुद को छुपा के रखें वो काफिर कैसे हो जाएगा? जी मेरी खतीबाना गलती है, मैं जोर नहीं लाया, तुसी ता नहीं बोले। मेरे उस्ताद मोहतरम फरमाया करता था जिस जुमले में जोर हो उस पे जोर नहीं लगाना, इस जुमले में बड़ा जोर है, बड़ा जोर है इस जुमले
में कि अबू तालिब ने छुपा के रखा था तहफ़्फ़ुज़ नबूवत के लिए। मेरे पास किताबें मौजूद हैं, सिर्फ एक जुमला कह के मैं साहिब की तरफ इसको कन्वर्ट करूंगा। ये जनाबुल मुवद्दत और मारिजुन नबूवत, ये दो किताबें मेरे पास पढ़ी हैं। इनमें ये भी लिखा है कि हजरत अबू तालिब ने कलमा पढ़ लिया था। ये गलत बात है, कलमा पढ़ा नहीं, किताबों में लिखा हुआ है, जिसने देखनी हो मैं दिखाऊंगा। हाँ, हजरत अबू तालिब ने एक दिन हजरत अकील को साथ लिया। कुछ वक्त गुजर गया था, हुजूर और मौला अली घर नहीं आए थे। साथ लेके ढूंढने के लिए निकले, देखा गार में जाके नबी पाक और मौला अली नमाज पढ़ रहे थे। फरमाया, अकील मेरी उंगली छोड़, जाके मोहम्मद के पहलू में खड़ा हो जा। जैसे जैसे ये करता जाए तू भी करता जा। अच्छा, मेरे वालिद साहब अहले सुन्नत हैं, वो मुझे कहते हैं बाकी साहब कोई ठीक है, मातम नहीं करना। सुन्नी है ना, मुझे मातम नहीं करने देते। ये अबू तालिब अगर काफिर था, अकील को क्यों कहता था बेटा नबी के साथ नमाज पढ़? यानी कि वसीयत अबू तालिब का नाम है अकील। आखिरी वक्त वसीयत की, फरमाया तब तक तुम्हारी खैर है जब तक मोहम्मद की इत्तिबा और मदद करते रहोगे। अगर खुद इत्तिबा और मदद नहीं की थी, औलाद में से किसी ने क्यों नहीं कहा अब्बा जी एडा ही चंगा काम सी तो तुसी क्यों नहीं कीता? जी आपने सुना होगा, तारीखों में ऐसे वाकयात भी मौजूद हैं। उसने कहा अब्बा जी मार लो, पर मारे ओ जेड़ा आप न पींदा होवे। ते हजरत अली आखिया सी उस आखिया अब्बा जी मार लो, पर मारे ओ जेड़ा आप न पींदा होवे। ते हजरत अली फरमाया पुत्र तेनू जिदन भी मारिया ना असी मारना ते फिर मारिया भी सी। ते मैं कई बार सोचदा हुंदा बड़ा कमीना सी जिन्हें प्यो दा भी हया नहीं कीता। प्यो नूं आख छड़िया भी मार ला, पर मारे ओ जेड़ा आप न पींदा होवे। ते ओ हजरत अली नूं कहंदा ते हुण शाह जी तुहाडी ते मैं गल ही नहीं सी कीती, तुसीं विच कित्थों आ गए हो? ऐ तुसीं ना हुंदे मैं अब्बा जी समेत सारे लवेट लिया सा। ऐ तुसीं नहीं सी आउणा है। यानी कि बेटे ने कह दिया बाप से, अगर हजरत अबू तालिब ने खुद ताबेदारी न की होती, औलाद में से कोई तो कहता अब्बा जी आपने क्यों नहीं की? वसीयत अबू तालिब का नाम है अली इब्न अबी तालिब। वसीयत अबू तालिब का नाम है अकील और अली। वसीयत अली का नाम है हसन और हुसैन। और वसीयत फातिमा ज़हरा का नाम है अब्बास। एक जुमले में एक बात समझानी है। अल्लाह की कायनात में सबसे इज्जत वाली हस्ती का नाम मुस्तफ़ा है। सारी कायनात जिसे सलाम करे उसे मुस्तफ़ा कहते हैं, जिसे मुस्तफ़ा सलाम करे उसे बतूल कहते हैं। और बतूल आखिरी वक्त जख्मी पहलू के साथ अली को बुलाया, या अली मेरे पास आ। मौला अली आए, बतूल की आंखों में आंसू थे। फरमाया या अली मेरे पास बैठो। बैठे। या अली आपने मेरे बाद शादी करनी है। अली रो के फरमाते हैं आप जैसी बीवी के बाद शादी? बीबी फरमाती है हाँ, शादी करना किसी बहादुर खानदान में, और उसमें से एक बेटा होगा, उसके कान में आजान व अकामत के बाद कहना ज़हरा सलाम कहती थी। वसीयत अबू तालिब का नाम है अली इब्न अबी तालिब, और वसीयत फातिमा ज़हरा का नाम है गाजी अब्बास। सिर्फ एक दुख तुम्हें गाजी का सुना दूं, एक दुख शबीर का सुना दूं, दो दुख सुना के इजाजत चाहूंगा जी। जब गाजी जीन से उतरे ना, मैं जब अकेला बैठा होता हूँ, मैं ये जुमला सोच सोच के रोता हूँ अकेला बैठ के। ये कुरान मेरे सामने, मैं अकेला बैठ के इस दुख रोता हूँ गाजी के पे। गाजी जीन से उतरा, शबीर जल्दी से पहुंचे, गाजी का सर उठा गोद में रखा। गाजी फरमाते मौला नहीं सी आना, मौला तुसी जो थके हो ते ना होंगे। फरमाया गाजी तेरे जैसा भाई जीन से उतरे मैं ना हूँ। आपने कभी एक्सीडेंट होते हुए देखा? थोड़े फासले पे एक्सीडेंट हो जाए ना, उधर से कोई बंदा इधर से, वो उसे पूछेगा तू वहां से आया है जहाँ एक्सीडेंट हुआ है? वो कहेगा हाँ मैं वहां से आया हूँ। ये कहेगा वहां पे इस शक्ल का कोई बंदा था? हाँ था। पर तू क्यों पूछता है? ये कहेगा वो मेरा भाई था।
बता मेरा भाई ठीक तो है ना? खुदा की कसम वो बंदा मर भी गया हो ना, ये बंदा नहीं पूछता तो सुन्नी है, शिया, वहाबी, देवबंदी, मुसलमान भी है या ईसाई, वो बंदा मर भी गया, ये कहता है तू तसल्ली से जा वो ठीक है, तू हौसले से जा वो ठीक है। क्यों? इसलिए कि ताकि भाई की लाश पे पहुंचने से पहले भाई मर ना जाए, भाई की लाश पे पहुंचने से पहले भाई मर ना जाए। ये कुरान मेरे सर पे है। फातिमा के बेटे से ने जिससे पूछा तुमने मेरे गाजी को देखा है, जिससे बतूल का बेटा पूछता था, कोई पत्थर मारता था, कोई तीर मारता था, कोई नेजा मारता था। जब जख्मी हो गए ना शबीर, मक्तल की तरफ मुंह करके फरमाते हैं गाजी हौसला रखना, नाने की उम्मत तुझ तक आने का रास्ता नहीं बताती, गाजी हौसला रखना। गाजी का सर उठा के शबीर ने गोद में रखा, फिर मैं अब्बास आंखें खोल मेरी तरफ देख। पूछो गाजी देखते क्यों नहीं थे? एक आंख में खून था, ये जो गुर्ज लगी थी, दूसरी आंख में तीर लगा हुआ था जी, जो पूरी कायनात के मुश्किल कुशाई करता था। आज गाजी मजबूर था। पूछो गाजी ने ये तीर निकाला क्यों नहीं? गाजी ने तीर निकाला क्यों नहीं? जो सवाल बैठे मुझे माफ कर देना, गाजी ने तीर इसलिए नहीं निकाला, गाजी के बाजू जो नहीं थे। गाजी तीर निकालता कैसे? फरमाया अब्बास मेरी तरफ देख। गाजी ने कहा मौला दिल मेरा भी करता है मैं देखूं जिनका कोई न रह जाए उनकी शक्लें कैसी होती है, पर मौला मजबूर है, एक आंख में खून है, एक आंख में तीर है। शबीर फरमाते हैं मैं तीर निकालूं? तीर ना मैं पढ़ सकता हूँ ना आप सुन सकते हैं। तीर निकाला शबीर ने, जैसे अली अकबर की बर्छी के साथ जिगर आया था ना, गाजी की आंख साथ आ गई, दूसरी आंख से यूं खून साफ किया शबीर ने। अब्बास की आंख से खून साफ हुआ, यूं गाजी ने देखा हुसैन की तरफ, यूं आंसू गिरने लगे। पेशानी चूम के फरमाते हैं गाजी तू न रो, गाजी तेरे रोने से मेरा दिल टूटता है। शबीर कहते तू न रो। गाजी फरमाते हैं मौला रो क्यों ना? मौला एक दुख मुझे खा गया। गाजी का दुख सुनाने लगा हूँ, मौला एक दुख मुझे खा गया, मौला एक दुख मुझे खा गया। मौला ने पूछा गाजी ये पेशानी की गुर्ज का जख्म रुलाता है? नहीं नहीं मौला। फरमाया ये आंख के तीर वाला जख्म रुलाता है? नहीं मौला। फरमाया ये जो सीने में तीर लगा है ये दुख रुलाता है? नहीं मौला। शबीर फरमाते हैं अगर तुझे आंख का दर्द नहीं रुलाता, पेशानी का जख्म नहीं रुलाता, गाजी तुझे सीने का तीर नहीं रुलाता, दुख कौन सा रुलाता है? दुख सुन लेना। पंजाबी भाई बैठे इसलिए जुमला पंजाबी में कहने लगा ताकि अच्छी तरह समझ आ जाए। शबीर पूछे गाजी दुख केड़ा खा गए? गाजी फरमाते ने मौला मशक फट गई तो पानी रुड़ गया, मौला मशक फट गई पानी गिर गया, शकीना मेरा इंतजार कर रही है, मौला तेरी बेटी इंतजार करे, बात पानी लेके न पहुंचे। गाजी को ये दुख खा गया। गाजी फरमाते अब हुसैन का दुख सुना ले। गाजी फरमाते हैं मौला ये मेरा तीर निकाले सीने वाला, और मौला मैं महसूस करता हूँ जब ये तीर निकलेगा ना साथ ही मेरी रूह भी परवाज कर जाएगी। शबीर फरमाते हैं गाजी तीर निकालता हूँ, पर तू कहता है ना तीर के साथ तेरी रूह परवाज कर जाएगी, तेरे सांस निकल जाएंगे। गाजी मैं तीर बाद में निकालता हूँ, पहले मुझे एक मर्तबा भाई कह, एक मर्तबा मुझे भाई कहे। गाजी कहते हैं मौला कैसे कहूँ मैं आपकी कनीज का बेटा, आप फातिमा ज़हरा के बेटे। इतनी देर में एक जानिब से आवाज आई गाजी कह दे मैं इजाजत देती हूँ। गाजी ने सुना ना कोई बीबी इजाजत दे दी। गाजी फरमाते मौला ये इजाजत देने वाली बीबी कौन है? शबीर फरमाते गाजी अब तो मुझे भाई कह दे, मेरी माँ ज़हरा आ गई है, गाजी मेरी अम्मा फातिमा आ गई, अब तो मुझे भाई कह दे। गाजी फरमाते हैं वाखियल मजलूम, हाय मेरा मजलूम भाई, हाय मेरे नाने की उम्मत का सताया हुआ भाई। इतनी देर में बीबी ने खेमे से फरमाया अम्मा फिजा जा जा के कह, अली की बेटी कहती है गाजी मुझे भी बहन कहे। गाजी ने वहां से फरमाया हाय मेरी परदेशन बहन, हाय मेरी अल्लाह राशन बहन, हाय मेरी दर्दो मारी कैदर बहन। गाजी और इमाम हुसैन बातें कर रहे थे जो पुराने अज़ादारों ने समझ आएगी, वरना मेरी तरफ देखना जिसे समझ ना आए। यूं गाजी का सर शबीर की गोद में था, गाजी और शबीर बैठे आपस में बातें कर रहे थे। बातें करते करते गाजी की आंखें बंद हो गई, गाजी की आवाज चुप हुई, इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। इधर से गाजी की रूह ने परवाज की, इस तरफ सदात के खेमे थे, उधर यजीद की फौज खड़ी थी, दरमियान में शबीर थे, गोद में भाई का सर था। यूं जब देखा ना गाजी की रूह परवाज करके, गाजी की तरफ देखा, कहते थे अब्बास, आंख से आंसू गिरते थे। तो फरमाया अब्बास आंसू, अब्बास आंसू। जिसने बात समझनी है मेरी तरफ देखना, जिसने घर जाके रोना है। अब्बास आंसू, अब्बास आंसू। तीसरी मर्तबा
فرمایا عباس آنسو، پھر غازی کی طرف دیکھا، پھر دیکھا یزید کے لشکر کی طرف، فرمایا غازی آج کے بعد یہ بندے تو آرام سے سوئیں گے نا، غازی آج کے بعد یہ بندے تو آرام سے سوئیں گے نا، جو تیرے ڈر سے ساری ساری رات جاگا کرتے تھے، غازی آج کے بعد یہ بندے تو آرام سے سوئیں گے نا، جو تیرے ڈر سے ساری ساری رات جاگا کرتے تھے۔ پھر خیموں کی طرف دیکھ کے فرمایا